It is my honor to introduce the iconic cultural personality of India, Dr. Sonal Mansingh, an internationally renowned cultural educator, writer, scholar, and thinker. She is the acknowledged master of cultural interpretations and of explaining interlinkages between philosophy, literature, sculpture, and mythological parables, and their impact on the socio-cultural tapestry of India. A celebrated dancer, Sonalji has been unique among dancers for her concern on issues of ecological imbalance, environment protection, empowerment of women, and social justice, especially for weaker sections of society. This, in turn, has led to the creation of numerous path-breaking choreographies. She has performed, given lectures, and conducted workshops in 90 countries of the world. Sonalji's ever-vibrant creativity has given new dimensions to known repertoires practiced in India. Natya Katha is the ancient form of storytelling which Sonalji has embellished with her own singing, narrative skills, and abhinay, that is, the art of expressive communication through hand gestures, words, and a face that reflects a myriad of emotions. As the founder president of the Center for Indian Classical Dances, she has trained several thousand talented performers who are carrying the message of Indian culture all over the world. In July 2018, she was nominated by the President of India to the Rajya Sabha, India's upper house of parliament, in recognition of her lifelong dedication and service to strengthening and spreading India's rich cultural traditions. She has also been nominated as one of the Navratnas for the Swachh Bharat mission by Prime Minister Srimad Narendra Modi, in which capacity she continues to evolve various schemes to spread the message. Her significant contribution to Indian culture has been recognized with numerous awards and honors. Notably, the Sangeet Natak Academy Ratna Award in 2018, the high civilian honor of the Padma Vibhushan from the President of India in 2003, the Padma Bhushan in 1992, Kalidas Samman 2008, Kameshwari 2008, and the Sangeet Natak Academy Award in 1987. She has also been bestowed many honorary doctorates. Doctor of Science from G.B. Pant University in Uttarakhand, Doctor of Literature from Sambhalpur University, Orissa, from KIIT University, Orissa, as well as from Rabindra Bharati University, Bengal. Sonalji has served as chairperson of the National Sangeet Natak Academy. She is also serving a second term as a trustee of Indira Gandhi National Center for the Arts. In recognition of her scholarship and continuing work in the social cultural field, she has been invited as visiting professor at the distinguished IIT Kharagpur. Recently, she has also been nominated to the Society of the Indian Institute of Advanced Study, Himachal Pradesh. Her life has inspired a leading filmmaker, Prakash Jha, to make a documentary on her work as dance, guru, choreographer, thinker. Sonal was released in 2002 and it won a national award for non-fiction film. She has also inspired a biography, Devpriya, in Hindi, by Yatindra Mishra, and Sonal Mansingh, A Life Like No Other, in English by Sujata Prasad. She has written 2 books, Incredible India, Classical Dances of India, describing the 8 dance forms emanating from the 1500-year-old text, Bharat Natya Shastra. Some of her many articles have been published recently in the book A Zigzag Mind. Sonalji speaks several Indian languages. Her training in classical Indian music systems, both from the south and the north, as well as the intricacies of the indigenous music system of Orissa, adds rare depth and dimension to her work. Her extensive experience and knowledge of global dance and music has played a very crucial role in shaping a nobler and a more inclusive vision of the performing arts.
This has helped it become an instrument for fostering harmonious coexistence as embodied in the ancient Indian adage, Vasudev Kutumbakum, that is, world is one family. Ladies and gentlemen, we now present Katha Siya Ram Ki by Dr. Sonal G. Mansingh and her troupe. Shri Ram Ram Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tatulyam Rama Nama Manare Ramaya Ramabhadraya Ramachandraya Vedase Raghunathaya Nathaya Sitaya Pataya Namah Lokabhiramam Ranangadhiram Rajivanetram Raghuvamshanadham Karunyarupam Karunakarandam Shri Ramachandram Sharanam Prapadye Manojavam Marutulya Vedam Jitendriyam Buddhimatam Varishtam Vatatmajam Vanarayuthamukhyam Shri Ramadutam Sharanam Prapadye Shri Ramadutam Sharanam Prapadye Shri Ramadutam Sharanam Prapadye बधाई गान महाराजा दशरथ के यहाँ 4 सुंदर राजकुमारों की पुत्र प्राप्ति हुई है। अग्रज हैं श्री राम। बधाई गान हो रहा है। अयोध्या के नगरवासी एकत्र हो गए हैं। Salo
कुमार नन्हे नन्हे खेल रहे हैं। तीनों माताएं अद्भुत रस का आनंद ले रही हैं। महाराजा दशरथ, उनका मन और किसी राज कार्य में नहीं लग रहा। बारी बारी से आकर सब झांकी कर लेते हैं और धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। तो एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने सुना, एक गृहिणी की भाषा में कह रहे हैं, मैंने सुना कि सवेरे सवेरे हमारे महाराजा दशरथ बालक राम को गोद में लिए महल के द्वार पर आ गए हैं, दर्शन दे रहे हैं। अरे चलो 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 चलो। तो कहती हैं, अवधेश के द्वार सकार गई, अवधेश के द्वार सकार गई, सुतबो गोद के भूपति लैनिक से, अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे थिक से। मैं तो ठगी सी देखती रह गई, लेकिन जिनका मन अभी भी चंचल है, ये देखने के बावजूद उनको धिक्का है। आगे कहते हैं, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन चातक से, सजनी ससी में समशील उभय, नवनील सरोरुह से विकसे। फिर कहते हैं, अरविंद सो आनन, अरविंद सो आनन रूप मरंद, अनंदित लोचन भृंग पिए, मन मोन बसो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए। पदनूपुर ओ पहुंची कर कंजनी, मंजू बनी मणिमाल हिए, नवनील कलेवर पीत झंगा, झलके उलके नृप गोदली। ऐसा दृश्य देवताओं को भी दुर्लभ है, लेकिन अयोध्या वासियों के लिए तो प्रतिदिन एक एक क्षण आनंदमय क्षण है। यहाँ अस्त्र शस्त्र घुड़सवारी आदि की विद्या उनको देना आरंभ हुआ। राजगुरु वशिष्ठ, अन्य सारे ऋषिगण मुनिगण संत महात्मा, उनका आना जाना, सबके मन में ये लालसा थी कि हम भी दर्शन कर लें। सुना है अद्भुत बालक है ये, कदाचित स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के ही स्वरूप है। सुना है, आते जाते दर्शन करते। अब यहाँ 8, 9, 10, 11, 12 बढ़ते चले गए। दिन दुगुना रात चौगुना। क्या कहने, माताएं बुलाती हैं, आइए। सुमित्रा कहती है, अरे लक्ष्मण, शत्रुघ्न कहाँ हो, आ जाओ। माता कौशल्या के चरण छुए कि नहीं। महारानी कैकेयी कहती, भरत कहाँ हो तुम, देखो माता कौशल्या तुम्हें याद नहीं है। ऐसे मधुमय वातावरण में ये चारों भाई बड़े हो रहे हैं। अग्रज है, मंद मुस्कान लिए, राजीव नेत्र श्री रामचंद्र। तो आपने सुना है ना, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुण। प्रार्थना क्या है, भवो भाव हमें बार बार न आना पड़े
उसका जो भय है उसका आप हरण कर लीजिए और कुछ नहीं चाहिए। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। क्या स्वरूप है कंदर्प, जो है स्मर कामदेव मदन, जिसका मद नहीं वो संभाल रहा, मैं ही सबसे सुंदर हूं। अरे कंदर्प अगणित अमित छवि, हजारों कामदेव के ऊपर भी जिनका सौंदर्य है, ऐसी छवि कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। और घने बादलों में जैसे बिजली कौंधती है, कड़ाके बोलते चमकती है, नवनील नीरद सुंदरम पट पीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम। ऐसे श्री राम जो जनक सुता के वर है, जिनको उन्होंने चुना है, वो ही श्रेष्ठ हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। फिर क्या कहते हैं, भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। फिर क्या कह रहे हैं, उनके गात्र, उनके शरीर का क्या वर्णन है। कोमल तो है, थोड़ा हल्का कोमल तो है, लेकिन योद्धा भी है, वीर है, महावीर है, परमवीर है। क्या है, आजानु सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण। शरीर का क्या वर्णन है, आजानु, खड़े होते हैं तो यहाँ तक की लंबी भुजाएं, आजानु भुज शर चाप। हाथ में क्या पकड़ा है, धनुष और बाण। संग्राम जित खर दूषण। और फिर जितने गुणगान करें उतना ही कम है, उतना कम है। तो थोड़े समय में बहुत कुछ कहना है, लेकिन पहले श्री रामचंद्र का वर्णन हम अपने मन हृदय में बसा लेते हैं, हृदय कमल में उनको विराजित करते हैं। और इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि जन ननम मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल दल गंजन। क्या प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे अंदर बसे हुए जो काम, तरह तरह की भावना है, कुटिलता है, उसको खंडन करो, उसका गंजन करो, उसको खत्म करो, उसका नाश करो। हे प्रभु, मेरे हृदय कमल में ऐसे विराजमान हो, उसके पहले मेरे हृदय को साफ करो। हम सोच नहीं सकते, हम तो क्या क्या मांग लेते हैं, एक बार में ही 10 चीज मांग लेते हैं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी इतना ही मांग रहे हैं, मेरे हृदय को निर्मल करो, जिससे कि आपको मैं विराजित कर सकूं। अब बड़े हो रहे हैं और नवकिशोर, उनकी परछाई है लक्ष्मण, और भरत के साथ है शत्रुघ्न। कहते हैं भरत का भी जो शरीर का रंग था वो भी श्री राम जैसा था, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों गोरे थे। तो ये जो नील और गौर वर्ण का एक अद्भुत संगम है, वो भी 2 जोड़ियां हैं।
अब एक दिन दरबार में विराजे हैं, महाराजा दशरथ गुणगान हो रहे हैं, वार्तालाप हो रहा है, राजगुरु वशिष्ठ विराजमान हैं और भी संत महात्मा आए हुए हैं। आज दूत समाचार लाया, प्रभु ब्रह्मर्षि श्री विश्वामित्र पधार रहे हैं। श्री विश्वामित्र, उनके क्रोध के बारे में तो सुना था। राजगुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज आदर सत्कार हो। स्वयं महाराजा दशरथ दौड़ के गए और उनका पाद पूजा करके आदर के साथ ले आए, विराजमान हुए। सभी ने प्रणाम किया, उन्होंने भी सभी संत महात्माओं सभाओं को प्रणाम किया। और अब कुछ क्षणों के लिए कोई कुछ बोला नहीं। महाराजा दशरथ देख रहे हैं, प्रभु कैसे आना हुआ, आपने हमें पावन किया। विश्वामित्र ने लंबी बात न करते हुए कह दिया, मैं तो राम को लेने आया हूँ। जी क्यों? मेरे आश्रम में एक भी यज्ञ की पूर्णाहुति हम नहीं कर पा रहे हैं, राक्षसों के आतंक से। हम जब यज्ञ करते हैं, अस्थियों की, लहू की वर्षा करते हैं। हमारे कोई यज्ञ सफल नहीं हो पा रहे। उनसे जूझने के लिए मैं राम को ले जाना चाहता हूँ। राम क्यों? मैं स्वयं चलता हूँ आपके साथ, मेरी सेना आएगी। नहीं, राम। महाराजा दशरथ, उन्होंने राजगुरु के सामने देखा। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, राम को बुलावा भेजा गया। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब आए, सबने प्रणाम किए। विश्वामित्र ने कहा, चलो राम, तुमने मेरे साथ चलना है। श्री राम एक शब्द बोले बिना महाराजा दशरथ पिताजी के चरण छुए, राजगुरु वशिष्ठ के चरण छुए और खड़े रहे जब तक पिताजी ने नहीं कहा, राम ऋषि विश्वामित्र के साथ जाओ। अब राम यदि चले हैं तो लक्ष्मण जी परछाई चलेंगे साथ में। सबने आशीर्वाद दिए हैं, स्वस्ति अस्तु कल्याणस्तु कल्याण शुभम। यहाँ चले हैं राम, पीछे है लक्ष्मण। पहुंचे हैं जब दूसरे दिन प्रातः यज्ञ क्रिया शुरू हो गई। वहां श्री राम, वहां लक्ष्मण तैयार हैं और जहां पूर्णाहुति की आहुति दी जा रही है, अस्थियों की वर्षा हो, उसके पहले सारे राक्षस लहू लुहान होके मृत्यु के द्वार पे चले गए और जो बचे थे वो भाग निकले। यहाँ पूर्णाहुति समाप्त हुई, यज्ञ फल मिल गया। वशिष्ठ विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिए और उसके बाद अगले दिन प्रातः कहा, प्रातः हमने निकलना है, तैयार हो जाना। जी, राम मुहूर्त में तो उठ जाते थे, उठ के तैयार हो गए और उसके बाद चले। ऋषि विश्वामित्र आगे, पीछे श्री राम, उनके पीछे लक्ष्मण। कहाँ जाना है ये नहीं पूछा है। ये बात मुझे जो बार बार मैं कहती रहती हूँ कि जब आज्ञा देखते देखते जा रहे, इतनी सुंदर वनराजी है, अचानक श्री राम रुके, उनसे रहा नहीं गया। गुरुवर, एक शंका है, एक संदेह का आप निवारण कीजिए। हाँ बोलो राम, बोलो। गुरुवर, ये आश्रम तो दिख रहे हैं, कुटीरें दिख रही हैं, लेकिन कहीं न एक मनुष्य, न एक आकृति, न एक पशु, न प्राणी, न पक्षी कोई दिख रहा। परम शांति है। ये कैसा आश्रम है प्रभु? बताता हूं।
यहाँ ऋषि विश्वामित्र ने सती अहल्या कन्या, 5 कन्याओं में एक अहल्या कन्या, कुमारी नहीं, सती नहीं, देवी नहीं। अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाश। ये है ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मा की पुत्री, मानस पुत्री अहल्या। ये उनका आश्रम है, गौतम ऋषि का आश्रम है। दर्शन बुलबुले कहानी सुनी, उनके बारे में बताया, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, परम सौंदर्यवती। लेकिन गौतम ऋषि ब्रह्म ज्ञान की खोज में यहाँ वहां जा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। अहल्या स्वयं ब्रह्म ज्ञानी है, अति रूपवती है, पति का सुख प्राप्त नहीं है। यहाँ इंद्र ने गौतम का वेश बनाया और आए। अहल्या ने सप्रेम स्वीकार किया। ये वाल्मीकि रामायण कहता है। और जब उनका संयोग हुआ उसके बाद अहल्या कहती है, अब आप पधारिए, अब आप जाइए। यहाँ गौतम ऋषि वापस आए थे, उन्होंने देखा लुकता छुपता इंद्र जा रहा है। जाकर अहल्या को अपशब्द कहे, अहल्या ने सुन लिए। उसके बाद एक वृक्ष के नीचे जाकर समाधि में बैठ गए। इतनी गहरी समाधि के लगा कि जैसे शल्या बन गई। लेकिन वाल्मीकि रामायण क्या कहता है? विश्वामित्र ऋषि ने कहा, वो देखो धुएं से भरी हुई, बीच में दीप शिखा जैसी जो आकृति है वही है अहल्या। जाओ तुम दोनों उनका चरण स्पर्श करो। हमारे मन में कई संदेह आते हैं। श्री राम ने उनका चरण स्पर्श किया, अहल्या के चरण का स्पर्श किया। अहल्या नारायण स्पर्श से समाधि से उठी और नारायण पाद देखे। तब जाकर श्री राम ने एक क्षण के लिए अपना नारायण स्वरूप धरा, आशीर्वाद दिया और फिर श्री राम बन गए। ये अहल्या की वार्ता है। बाकी तो जो हम सुनते आए हैं उसमें कहीं वाल्मीकि रामायण की सुगंध नहीं है। इतने स्पंदन फैले हुए हैं। जनक सुता राजकुमारी सीता का विवाह होना है, मंडप बने हैं, तंबू सजे हैं, राजा महाराजा महारथी चक्रवर्ती सम्राट चारों दिशाओं से आ पहुंचे हैं। सबके मन में इतनी लालसा विलास है। हे परम रूपवती सीता का हाथ हमारे हाथ में आ जाए। यहाँ महाराजा जनक ने विधि पूर्वक स्वागत किया और अपने ही महल के अतिथि गृह में उनको विश्राम दिया है। दूसरे दिन सुबह श्री राम कहते हैं, गुरुवर हम थोड़ा उद्यान देखें। हाँ जाओ जाओ। तो श्री राम और लक्ष्मण निकले हैं, राज उद्यान में घूम रहे हैं। यहाँ सीता जी अपनी सखी के साथ जैसे उनका विधि होता है वैसे कुल देवी गौरी की पूजा करने के लिए निकली हैं। यहाँ श्री राम और लक्ष्मण, वहाँ जनक सुता सीता अपनी सखी के साथ। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं।
सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहो बखानी, श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिलुबानी। क्या कहती है सखी कि एक है श्याम वर्ण, एक है गौर वर्ण, उनकी प्रशंसा मैं कैसे करूं, क्योंकि मेरी गिरा वाणी को दृष्टि नहीं है और नेत्र की दृष्टि को वाणी नहीं है, ये दोनों को मैं मिला नहीं पा रही हूँ, कैसे बखानूं। गिरा अनयन नयन बिलुबानी, देखन बादल अति उत्कंठा जाए, सियहि अति उत्कंठा जाए, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, अब से देखें यहीं देखन जो। सब लोग कह रहे हैं अरे देख लो, अवश्य देख लो, देखने लायक है, अवश्य देखे यहीं देखन जोगो, देखन राम स्वयं को कह रहे हैं कि कंकण किंकणी नूपुर वगैरह की जो मधुर ध्वनि आ रही है, उससे मैं सहज भाव से इतना गंभीर हूँ, मर्यादा में मानता हूँ। मेरे हृदय में जैसे कि कामदेव ने नगाड़े बजा दिए हैं। ये क्या हो रहा है? मानहु मगन दुंदुभिदी मनसा विजय कहकीनी, मनसा विश्व विजय कहकीनी। ऐसा कह के श्री राम ने उस तरफ देखा जहां से ध्वनि आ रही थी। अस करी मेरी चितये तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, कंकण किंकिणी नूपुर धुन सुनि, नूपुर धुन सुनि, कंकण किंकिणी अब श्री राम मनी मन सोच रहे हैं, तात जनक तनयाय सोई, धनुष जट श्री कारण पूजन गौरी सखी ने आए, तरदास की जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत सहज पुनीत और मन शोभा। सहज पुनीत है, मेरा मन शांत रहता है, लेकिन
इनका अलौकिक रूप देखकर मेरा मन चलित हो गया है। ऐसा कह के सीता जी अपनी सखी के साथ गौरी की पूजा के लिए गई। यहाँ ये लोग आगे थोड़ा गए, पेड़ वृक्ष देखते देखते, लेकिन आंखों से ओझल हो गए। चितवत चकित चहुरी से सीता, कहाँ गए रूप किशोर मन चिंता। चितवत चकित चहुरी से सीता, कहाँ गए रूप किशोर मन चिंता। जहाँ भी लोग छोटे मृग के जैसे, छोने की आंखों के जैसे जिनकी आंखें थीं, जनु तहाँ बरस कमल सित श्रेणी, जनु तहाँ बरस इतनी मधुर अमृत दृष्टि सीता जी की। जहां जहां उन्होंने श्री राम को खोजने के लिए दृष्टि डाली, वहां वहां जैसे कि कमल खिल गए। इससे ज्यादा सुंदर नेत्र का वर्णन मैंने आज तक नहीं देखा, न सुना, न किया। जनु तहाँ बरस कमल श्री। चिंता में हो गई तो सखी ने, सखियां बड़ी चतुर होती थी, आजकल का पता नहीं है, आज तो आपका मोबाइल आपका सखी है, लेकिन सखियां चतुर होती थी। सखी ने देखा लता ओटत सखी श्यामल गौर किशोर सुहाए, लता ओटत सखी श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाए, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। जैसे कि मेरा खोया हुआ खजाना मिल गया, वैसे सीता जी ने जब राम को देखा तो ऐसे हर्षित हुई। लेकिन यहाँ वहाँ देखते देखते थक गई थी, नाजुक थी सीता। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हरि पलक भी नहीं छपी। अब उन्होंने क्या किया, लोचन मग राम ही उन आई, दृष्टि के रास्ते से श्री राम को आ ले आई सीता जी। दीन है पलक कपाट सयानी। अब सीता की चतुराई देखिए, श्री राम को हृदय में बसा लिया और उसके ऊपर पलकों का किवाड़ बंद कर दिया। है पलक कपाट सयानी। उसके बाद थके नयन रघुपति छवि देखे, और वो चुपचाप बैठ गई वहां। अब ये सखी को बड़ी चिंता हो गई, ये क्या हो रहा है सीता को। फिर बोलने लगी, धरी धीरज एक आलिस यारी, सीता सन बोली गई बानी, धरी धीरज एक आलिस यारी, सीता सन बोली गई बानी, बहुरी गौरी कर ध्यान धरे। अरे पता है बड़ी ध्यान में बैठी है। बहुरी गौरी कर ध्यान धरे, अरे आँख खोल के भूप किशोर देख किनले, अरे जल्दी से देख लो, पहले ओझल हो जाए उससे पहले देख लो। धरी धीरज एक आलिस यारी। सीता जी ने जैसे सुना, सखोची सिया तब नयन उभारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, सीख देख राम के शोभा, सुमेर पिता पल मना एक दृष्टि है श्री राम की छवि को देखते
आनंदमय। और उसी क्षण स्मरण होता है मेरे पिताजी ने कैसी प्रतिज्ञा ले ली है, अब मैं क्या करूं। फिर सखी मैदान में उतरी, उसने कहा ये क्या हो रहा है। अब वो राम के पास आती है, मजाक करती है। परबस सखी जाके श्री राम को कहती है सीता जी को देखना है फिर से, तो इसी स्थान पे कल इसी वक्त आ जाना, सेम प्लेस सेम टाइम जाते भी मन नहीं भरा है। सीता जी बार बार कहती ये वृक्ष के देखो, अरे मृग को देखो, देख रही है राम को। देखन मृष मृग विहग कवि, फिरई बहारी बहारी, निरख निरख रघुवीर छवि, बाढ़े प्रीति ये दिन तो हो गया। अगले दिन प्रातः काल भोर से ही नगाड़े दुंदुभी ढोल वाद्य सब बज रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। जगह जगह यहाँ हार चारण बंदी अनाउंस कर रहे हैं विवाह का दिन है, स्वयंवर होगा। तो अब इस सभा में राजा महाराजा सामंत चक्रवर्ती सम्राट आदि जो सब आए अपने दल बल के साथ आके बैठ गए हैं। सबके मन में उमंग उत्साह उल्लास उमड़ रहा है और सब एक टक देख रहे हैं और एक दूसरे को देख के यहाँ पर रावण भी आए थे, बाण जैसे भी आए थे, कौन नहीं आया था। लेकिन यहाँ जब ऋषि विश्वामित्र का आगमन हुआ, महाराजा जनक ने उठ के अभिवादन किया। उनके पीछे श्री राम और लक्ष्मण पधारे हैं। राजत राज समाज कौशल राज किशोर, सुंदर श्याम विश्व विलोचन जो, राजत राज समाज राजत राज समाज कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर कर्ण विश्व विलोचन जो। रभाचारण बंदी अब महाराजा जनक की प्रतिज्ञा कह के सुनाते हैं। थोड़ा कम वन विदेश कर कहानी हम पूरा
सुनहु सकल मोहा पन विदेह कर कान हम भुजा उठाई विशाल। क्या प्रतिज्ञा है? राजाओं सबके जो भुजबल है बहुत बहुत शक्तिशाली है, किंतु याद रहे आपका भुजबल यदि चंद्रमा की तरह है तो शिव जी का दिया हुआ धनुष राहु की तरह है, ग्रस लेगा। ध्यान रहे नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु गरुड़ कठोर सब काहू। रावण बाण महाभट मारे देख सरासन गवहि सिधारे। रावण बाण महाभट मारे देख सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जो ही तोरा। सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जो ही तोरा। जो भी आज तोड़ेगा शिव जी के दिए हुए इस कठोर धनुष को तो क्या होगा? त्रिभुवन जय, तीनों लोकों में जय जयकार हो। त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बरई हठ के। बिना विचार किए राजकुमारी सीता उनके गले में जयमाला डाल दी। सब बैठे हुए सुनिए। सुनिपन पने प्रतिज्ञा सुनिपन सकल भूप अभिलाषी। अभिलाषा एम्बिशन तो कूद रही है। सुनिपन सकल भूप अभिलाषी भटमानी अतिशय मन माखे। अपने अपने को बड़े भी समझ रहे हैं तो एक एक करके उठे। क्या किया? परिकर बांध उठे अपुलाई। उठने और जाने के पहले बांध दिया कमरबंद। चले इष्ट देवन सिर नाई। अपने अपने इष्ट देव का याद करके प्रणाम करके एक एक करके राजा आगे चले हैं, धनुष तोड़ने चले हैं। हाँ।
बुरे हाल हुए, अवस्था जो हो गई दयनीय, तो उन लोगों ने क्या कहा, अरे हम 10,000 इकट्ठा करके हम इकट्ठे धनुष को उठाएंगे, तोड़ेंगे। तो आज की भी परिस्थिति वही है, कुछ कुछ पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, बाद में सीता जी किसके गले में डालेंगी। तो सोचा नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं हास्य रस की जो उत्पत्ति हो रही है, भूप सहस दस के क्या हुआ, तो उनकी अवस्था क्या हुई, गोस्वामी जी बता रहे हैं। श्री हत भय, श्री चली गई, श्री हत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाए समान, जाके बिल्कुल बैठ गए, प्राण चला गया। ऐसा जो दृश्य जनक राजा ने देखा तो उनका धैर्य टूट गया, रोष में आके कहने लगे, विलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनु साने, कहु काहू यह लाभन भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा, रहु चढ़ाऊ तोरब भाई, दिल भर भूमि न सके छुड़ाई। अरे दिल भर भूमि भी आप नहीं छुड़ा सके, अब जनी को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। जनक राजा क्या बोलते, आज मुझे पता चला कि पृथ्वी पर कोई वीर पुरुष नहीं बचा, वीर विहीन मही मैं जानी। त्यजहु आस निज निज ग्रह जाओ, चलो जाइए अपने अपने घर जाइए। लिखान विधि वैदेही विवाह, कदाचित विधि ने मेरी राजकुमारी, मेरी पुत्र के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। जैसे ही ये शब्द कान में पड़े, लक्ष्मण जी हो गए खड़े। लखन कुटिल भई मोने, माखे लखन कुटिल भई मोने, रजपट फरकत नैन सोए। लाला पुरुष कहते कहीं कहीं झलक अस अनुचित बानी, अरे विद्यमान रघुकुल मनि जानी, कहीं झलक अस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि। लक्ष्मण का हाथ पकड़ा ऋषि विश्वामित्र ने, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ पुत्र। और अब उठहु राम, उठहु राम भंजहु भव चापा, आज्ञा दे दी, जाओ धनुष तोड़ो। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक मरिसा। ऐसा करके महाराजा जनक के हृदय में जो शोक उद्वेग है उसको शांत करो। यहाँ अपने गवाक्ष से सीता जी
दृश्य देख रही हैं और मन ही मन प्रार्थना कर रही हैं। तब राम विलोक वैदेही सभय हृदय विनवत चिते नीके विरज नयन भरि शोभा पितुपन सुमरि बहुरी मन छोभा कहाँ धनु कुलिशहु चाप कठोरा कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। गौरी को कह रही है कि कहाँ ये कठोर धनुष, कहाँ ये मृदु श्यामल गात्र वाले श्री राम। कैसी मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की है, माँ अब तू ही आशीर्वाद दे, तू ही कुछ कर। यहाँ श्री राम ने अपना धनुष बाण रखे। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की नाम। पहले गुरु को प्रणाम किया और चले गुरु ही प्रणाम मन ही मन की नाम। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की नाम। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की नाम। अति लाघव उठाए फूल की तरह धनुष उठा लिया। कैसे दिखा धनुष? के उदामिनी जगलायो मुनि धनु नभमंडल समभयो। के उदामिनी जगलायो मुनि धनु नभमंडल रेत चढ़ावत रेत दाढ़ी। काहू न लखा सब देखत ठाड़े। रेत चढ़ावत खेचत गाड़े। सब देखत ठाड़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा। हरे भूमि और कठोरा। हरे भूमि और कठोरा। सीता जी का श्रृंगार हो रहा है। मन ही मन सीता जी अपने आप को संभाल रही हैं। आनंद की उत्कटता नहीं दिखा पा रही, लेकिन सखियां समझ रही हैं यहाँ नख से शिख तक का श्रृंगार हुआ।
मन परम उछाहु, तनस कोच मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम परहिन काहु, तनस कोच मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम परहिन काहु, जाय समीप राम छवि देखी। जैसे ही पास जाके श्री राम पे दृष्टि गई, रही जनु कुंवर चित्र अवरेखी। चित्र के समान शब्द हो गई। फिर चतुर सखी आई, कान में कह दी जल्दी पहना दे, शुभ घड़ी जारी है। चतुर सखी रखी कहा बुझाए, पहिरावो जय माल सुहाए, पहिरावो जय माल सुहाए। श्री सीता और राम का आगमन होता है तो गोस्वामी जी ऐसी मजाक उड़ाते हैं। सारे जो राजा महाराजा सामंत चक्रवर्ती सम्राट इकट्ठे हुए हैं, उनकी क्या अवस्था है। कहते हैं कि श्री रघुवर के गले में जयमाल देखकर ये सारे ऐसे मुरझा गए जैसे कि रात की कुमुदिनी सूर्य को देखते मुरझा जाती है। रघुवर पुरा जयमाल